नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख कर्नाटका की जानिब से एक तहनीत इजलास डॉक्टर मुमताज़ मेमोरियल हॉल शिवाजी नगर में मुंतखब किया गया। इजलास की शुरुआत क़िरात और नात पाक से हुई। शफीक आबिदी ने आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया। नाजरीन, बताता चलूं, अंजुमन के सदर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ को कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट होने पर जिले से आए हुए जिम्मेदार हजरात ने मुबारकबाद पेश करते हुए गुलपोशी की गई। मौके पर मुबीन मुनव्वर, जनरल सेक्रेटरी खदीर सदगुरु, साबिक उर्दू अकादमी के चेयरमैन ने मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ की कारकर्दगी पर सराहा। इस इजलास में ज़िले के नुमाइंदे शरीक रहे और अपनी राय पेश की। नाजरीन, बताता चलूँ, इस माह में दो अजीम शख्सियतों ने इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी याद में ताज़ियती इजलास का अंजुमन तरक्की उर्दू शाख कर्नाटका के ज़ेर आम किया गया। नातगो शायर अंजुमन तरक्की उर्दू शाख चित्रदुर्गा के सदर मोहम्मद सिद्दीकी और उर्दू ज़बान के मारूफ शायर और साबिक उर्दू अकादमी के चेयरमैन खलील मामून, इन दोनों मरहूमीन को इस मौके पर अखराज ताज़ियत पेश करते हुए उर्दू अदब के मशहूर और कालम निगार व शायर मुनीर अहमद जामी और मरहूमीन के चंद यादें ताज़ा करते हुए रोशनी डाली, दुआ की गई। इस मौके पर मुबीन मुनव्वर, जनरल सेक्रेटरी सैयद अशरफ, नायब सदर शफीक आबिदी, ट्रेजरर एजाज अली जौहरी, कन्वीनर अथर शिमोगी, अब्दुल खदीर सदगुरु, साबिक चेयरमैन उर्दू अकादमी मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ वगैरह मौजूद रहे। एजाज अली जौहरी ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जज़ाकल्लाह मौलाना। अब नात शरीफ पेश करेंगे जनाब मुबीन मुनव्वर साहब, सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू। नात शरीफ का मतला पेश कर रहा हूँ। कहता हूँ कि हर साल मुयस्सर हो रमज़ान मदीने में, हर साल मुयस्सर हो रमज़ान मदीने में, आका के बने हम भी मेहमान मदीने में, आका के बने हम भी मेहमान मदीने में। मिलती है वहाँ झुक कर अफलाक की ऊंचाई, मिलती है वहाँ झुक कर अफलाक की ऊंचाई, रहमत के फरिश्ते हैं दरबान मदीने में, रहमत के फरिश्ते हैं दरबान मदीने में। किस्मत के संवरने में कुछ देर नहीं लगती,
لمحہ فیضان مدینے میں جاری ہے ہر ایک لمحہ فیضان مدینے میں آقا کے دیوانوں کی حالت ہی جب دیکھی ہوتا ہے انہیں حاصل عرفان مدینے میں ہوتا ہے انہیں حاصل عرفان مدینے میں حضرت صدیقی صاحب چتر گروپ سے تعلق کرتے تھے۔ تو آئیے میں سب سے پہلے آج کے اس اجلاس کے صدر وہ اعزازی مہمان وہ صدر انجمن ترقی اردو کرناٹک شاہ محترم خان محمد عبید اللہ شریف صاحب کا دل کی گہرائیوں سے انجمن کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ انجمن ترقی اردو جب سے محمد عبید اللہ شریف صاحب نے سنبھالی ہے، آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ انجمن متحرک ہو گئی ہے، ورنہ ایک سخت خانے میں پڑی ہوئی انجمن آج اتنی متحرک ہے کہ ہر جگہ اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا، بشرطے کہ اردو دانوں کا تعاون لازمی ہے۔ میں ہر جگہ ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، وہ یہ کہ سپاہ سالار کی کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک سپاہی ان کا ساتھ نہ دیں۔ تو سپاہیوں کا جو ہے اہم مسئلہ ہوتا ہے، جب تک سپاہی ساتھ نہیں ہوں گے تو سپاہ سالار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک اردو کے سپاہی بن کر جو ہے ان کے ساتھ جڑیں اور کام کریں۔ تو آئیے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے انجمن ترقی اردو کے کنوینر، اردو زبان کے مہم، حالانکہ وہ شاعر تو نہیں لیکن اردو زبان سے ان کو جو والہانہ محبت ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی اردو زبان کے اجلاس منعقد ہوں یا اردو زبان کی ترقی کی بات ہو، وہاں پر محترم المقام میر اعجاز علی جوہری صاحب دامے درہمِ سخن سامنے آتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش بختی ہے، میں ان کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ 75 برس کی عمر میں بھی جو ہے جوانی کا اظہار کرنے والا، دل رکھنے والا ایک عظیم شخص ہمارے درمیان ہے، جس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری عمر ہو گئی ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ دل جوان ہے، ضعیفی کیسی، سفید بالوں کی ایسی تیسی۔ وہ ہے محترم مبین منور صاحب۔ میں تو ہر وقت یہی کہتا ہوں کہ اگر مبین منور صاحب کا جو جذبہ ہے اس عمر میں اگر وہ ہمارے جوانوں میں آ جائے تو اردو زبان میں انقلاب آ جائے گا، اردو دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا۔ معتمد انجمن ترقی اردو محترم الحاج مبین منور صاحب کا میں انجمن کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کا مقام رکھتے ہیں۔ میں تمام حضرات کا جو حضرات یہاں پر تشریف لائیں ان سب کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے اپنی بات کروں۔ میرے کوئی ضروری خیالات تو ہے نہیں جو میں آپ تمام کے سامنے روبرو پیش کر سکوں۔ محمد عبید اللہ شریف صاحب کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ہے جو کہ مجھ سے زیادہ آپ تمام بھی ان سے واقف ہیں۔ میں تو صرف محمد عبید اللہ شریف صاحب کو بہت کم عرصے سے جانتا ہوں، تقریباً 35 سال سے ان کی میری دوستی ہے۔ تعلیم سے کے حساب سے جناب ڈپلومہ ان میکینیکل ہے۔ بچپن سے ہی ان کو اردو کا شوق، اردو سے لگاؤ رہا، اس لیے ہمیشہ اردو کے کاس کے لیے وہ کام کرتے آ رہے ہیں۔
ऐसी ही उर्दू की एक महफिल में जहां पर उन्हें मेहमान खुसूसी बनाया गया था, मैं उस महफिल में एक सामई की तरह गया था, आया और उनसे दोस्ती की, जो आज तक तो दोस्ती हमारी साथ चल रही है। हमेशा ये उर्दू के काज को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इनके ये उर्दू का जज्बा दिन ब दिन परवान चढ़ता ही रहा। उन्होंने उर्दू की मोहब्बत में सबसे पहले उर्दू हफ्तावारी अखबार उरूज हिंद के नाम शरीफ साहब ने ऐसे शानदार मुशायरे उन्होंने कराए बेंगलोर में, कि जिसमें एक तो आलमी मुशायरा था, दूसरा जो है 2-3 मुशायरे हिंदुस्तान के, यानी यूं शरीफ समझिए कि ऑल इंडिया मुशायरे, कौमी मुशायरे रहे, जिसमें हिंदुस्तान भर के वो रहे। जनाब वाला KMDC का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद KUIDFC कर्नाटका अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के भी सदर रहे, फिर कियोनिक्स के भी सदर रहे और बहुत अच्छे अच्छे काम अंजाम दिए। उर्दू दुनिया के हिसाब से NCPUL के डायरेक्टर भी रहे और उड़ीसा के पोर्ट के भी डायरेक्टर रहे। इंतहाई के ऊंचाइयों की हद जिसको कहते हैं, वो हजरत गरीब नवाज के बारगाह के सदर बने। हजरत गरीब नवाज के सबसे उससे ऊंचाई तो कोई है नहीं, पर ओहदों में हजरत गरीब नवाज के दरगाह कमेटी के जो सदर बने, वहाँ भी बहुत अच्छे काम उन्होंने अंजाम दिए। इसी तरह जहाँ कहीं भी उबैदुल्लाह शरीफ साहब जाते हैं, एक नया एक निशान छोड़ जाते हैं और हर जगह अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना जो भी काम उनके हिस्से में आता है उसे निभाते हैं। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की माइनॉरिटी सेल के 3 बार सदर रहे, जो माइनॉरिटी को उन्होंने अपनाया। उस वक्त हर जगह, हर जिले में उसकी मीटिंगें भी होती थी और ये भी फंक्शंस भी होते थे जहां हम तमाम साथ जाते थे। जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई तो इनके जो मिली खिदमात हैं, जो इमदादी और राहती अशिया वगैरह को लेकर जहां जहां पर ज्यादा जुल्म हुए थे, वहां पर लारियों में राशन लेकर वहां तक पहुंचे। पहले से ही उबैदुल्लाह शरीफ साहब की एक टीम ऐसी है कि उनके साथ हमेशा वो रहते हैं। जहां कहीं भी दामे दिल में सुख में जहां भी जैसे भी उनको साथ देना है वो देते हैं। इसलिए हर जगह अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करता है। आज भी कई मिली और फलाही इदारों से मुंसलिक हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जहां पर हम मौजूद हैं, ये हाल जो है इसकी भी तामील कराने में, ये भी करने में इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। ये स्कूल जो है, जिस वक्त अंजुमन तरक्की उर्दू ने इसको गोद लिया, सिर्फ 29 बच्चे यहाँ पर थे। आज तकरीबन 280 बच्चे यहाँ पर हैं। 2 साल में 280 बच्चे हैं। किसी से कोई फीस नहीं ली जाती। यहाँ तक कि हर बच्चों को जो भी यहाँ के तलबा तालिबात हैं उनको यूनिफॉर्म से लेकर राशन तक उनको हर महीने का दिया जाता है। ये सब जो है उबैदुल्लाह शरीफ साहब की रसूख का नतीजा है। यहाँ के MLA ने ये पूरी बिल्डिंग, इतनी खस्ता हालत बिल्डिंग थी, उसको इनके रसूख ने इसे एक बहुत खूबसूरत बनाया। इसी तरह जीवनपल्ली में जहाँ एक स्कूल है अलमीन की, वहाँ पर 80 बच्चे थे, आज 400 बच्चे हैं वहाँ पर। वहाँ के भी बच्चों को ये तमाम चीज़ें हमारे अहबाब जो भी हैं उन तमाम की किताबों से लेके, कापियों से लेके, जूतों से लेके यूनिफॉर्म तक सब मुफ्त देकर हम ये तालीम दे रहे हैं। अल्लाह करे कि क्या ये जज्बा जो है गरीब अवाम के लिए, मदरसों के लिए, स्कूलों के लिए, अल्लाह करे कि ये रोज़ परवान चढ़ता रहे और ये इसी तरह कौम व मिल्लत की खिदमत करते रहें। इनको
उर्दू की कोई कभी कमी नहीं रही। इनको इस वक्त तक एमएलसी बन जाना चाहिए था, एमएलए बन जाना चाहिए था, एमपी बन जाना चाहिए था। जब जाफर शरीफ साहब को टिकट नहीं मिली तो उस 10,000 रुपये मुझे किसी ने दिए और ना मैंने किसी से लिए और ना किसी ने मुझे पूछा कि कैसे 10,000 रुपये, मैं नहीं जानता। ने काबिल साहब ने कहा था कि आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। मैं बोला साहब मुझे तो नहीं मिले और मैंने लिया भी नहीं, और कौन गुलाब साहब है मैं गुलाब साहब को भी नहीं जानता। बात रह गई। खलील साहब ने काबिल बद्री को खत जवाब लिखा कि जामी के पैसे नहीं मिले हैं। यहाँ काबिल बद्री की दयानतदारी का अंदाज़ा लगाएं। 15 दिन के बाद मुझे एक लिस्टेड पोस्ट मिलता है, खोल कर देखता हूँ तो उसमें चेक है और ताख़ीर हुई इसलिए कि मुझे पेंशन देर से मिली थी। तो मैं वो ख़त और वो चेक लेकर खलील साहब के पास गया। खलील साहब को मैंने वो चेक भी दे दिया और ख़त भी दे दिया। तो खलील साहब ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा साहब जो आपके दिल में है वही मेरे दिल में भी है, बेहतर है कि हम इसको वापस कर लें। तो खलील साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक जामी, वो शख्स वाकई हाजतमंद है, उसको रुपयों की ज़रूरत है। चूँकि वो एक दयानतदार और ईमानदार शख्स है, उसने अपनी ज़बान की बात रख ली और उसने चेक भेज दी। तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने बोला कि साहब चेक भी रवाना कर दें। तो हम लोगों ने चेक रवाना कर दिया। इससे खलील साहब की इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खलील साहब ने दूसरों की हमदर्दी और दूसरों से कितना उनके दर्द का पास था अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चाहते तो चेक रख लेते और मुझे कह सकते थे जामी चेक आ गया रख लो, मगर ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि मुझे नसीहत की कि इस चेक को वापस कर लेना चाहिए। और उसके बाद मुझे काबिल बद्री का ख़त आया, बड़ा हैरत अंगेज़ ख़त, सादा कागज़, मेरा नाम, दरमियान में शुक्रिया और आखिर में आपका नाम। ऐसी चीज़ें होती हैं दुनिया में। हम लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि वो बददियानतदार रहे, ऐसा नहीं है। हम किसी के बातिन में नहीं झांकते। ये बात क्या कोई ज़ाहिर परस्त समझेगा? ये बात क्या कोई ज़ाहिर परस्त समझेगा? वो बदचलन था तो क्यों उसे बहिश्त मिली। मैं यहाँ खलील साहब की जो फितरत मैंने महसूस की, मैंने जो देखा, जो आदत देखी, मैंने उसको आपके सामने रखा। और दूसरी बात, आपको उर्दू ज़बान और अदब से बड़ा गहरा लगाव था। आप उर्दू के लिए कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि आप माली एतबार से उतने साउंड नहीं थे, हमेशा माली बहरान का शिकार रहे। इसकी वजह यह भी थी कि उन्होंने कभी गलत तरीक़े से कमाई नहीं की, जहाँ तक मैं समझता हूँ। वो हमेशा कर्ज़दार रहे। इसकी क्या वजह? एक हायर पोस्ट पे और वो कर्ज़दार। चाहते तो वो बहुत कुछ कमा सकते थे, लेकिन हमेशा उन्होंने अपनी कर्ज़दारी का ही वाक़या मुझे सुनाते रहा। माली बहरान का शिकार रहने के बावजूद वो बड़े से बड़े काम करने पर आमादा हो जाते थे। उर्दू से बड़ा गहरा लगाव था आपको। आपने, मेरे जहाँ तक मुझे मालूमात है, 2 अखबारात उन्होंने शुरू किए। एक कौनो मकाम जो था अदबी मज़ामीन वाला, और एक इख्तिलाफ, ये था सियासी, यानी आम अखबारों जैसा। इसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की और उन्होंने मुझसे कितना काम लिया मैं जानता हूँ। यूँ भी हालत हुई, ताज प्रेस में वो प्रिंट हुआ करता था और मैं अपने कंधों पर, इनके जज्बे से मैं मरऊब था, मैं बहुत पसंद करता था। ये जब भी कहते कि जानी ये काम करना है, मैं प्रेस जाता। और मैं शफी भाई जब हयात थे, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि जामी एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं शफी भाई बोलो क्या? मैं समझता हूँ कि तुमने
माँ बाप की खिदमत नहीं की है, ये जुमले थे। तो क्या मतलब, मैं बोला कि अभी इसी का सिला है जो यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने उतनी मेहनत की कि अपने कांधों पर मैंने अखबारात उठाकर सपने किए हैं। बहरहाल हम लोगों का एक जज्बा था। मेरे और खलील साहब के बहुत ही करीबी ताल्लुकात रहे, यहाँ तक कि उनके घरेलू मालूमात में भी मेरी मदाखलत रही, मगर बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपके अदबी सफ़र के ताल्लुक़ से ये एक बात मैं कहते हुए अपनी जगह लूँगा। एक बार उन्होंने मुझे अपने दफ्तर बुलाया, मैं गया तो उनके पास कुछ कागजात थी टेढ़े मेढ़े हुए। मैंने पूछा ये साहब क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी गज़लें हैं। तो मैंने कहा साहब अगर आप चाहें तो मैं इन्हें नीट कर दूं। तो उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और मुझे तमाम चीज़ें दे दी, फ़ैल का फ़ैल, ले जाओ और खुद से सही करो या जो भी करना है तुम इसको कर लो। तो मैंने उसको, उन गज़लों को मैंने तरतीब से खुशखत में लिखा। और यहाँ एक आपकी आला ज़रफ़ी का मैं ऐलान करता चलूँ कि आज के नौजवान थोड़ी सी भी हम गलती की तरफ इशारा करते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा भी इत्तेफाक हुआ, खलील साहब के कुछ गज़लों पर मैंने इशारा दिया तो उन्होंने, उनकी आला ज़रफ़ी देखिए कि उन्होंने इनकार नहीं किया बल्कि उसको मान लिया कि ठीक है जब मैं ऐसे ही करूँ। बहरहाल किताब तरतीब हुई, उसका नाम निशात गम दिया गया। ये आपका उर्दू का पहला मजमूआ था, इससे पहले भी आपकी 2-3 किताबें आ गई थी। उसके बाद उसका हिंदी में भी यानी ख़त बदला गया, सिर्फ मतन वही रहा मेरा ख़त बदला गया। तो भी वो काम भी मैंने किया था। ये 2 काम मैंने उनके किए थे। इसके बाद आपको बेहिसाब अवार्ड से नवाजा गया, जैसे राज्योत्सव अवार्ड आपको मिला, केम्पेगौड़ा अवार्ड आपको मिला, कर्नाटक साहित्य अवार्ड आपको मिला और कर्नाटक उर्दू अकादमी का अवार्ड आपको मिला और फिर हाल ही में गालिब इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला। बहरहाल आपकी शख्सियत एक इंसान की हैसियत से भी काबिल क़द्र थी और फिर एक कलमकार की हैसियत से भी काबिल क़द्र थी। मेरे साथ मैं इन चंद कलमात के साथ कहने को तो मेरे पास बहुत है और वक्त की तंगी की वजह से मैं अपनी बात को समेटते हुए इतना कहूँगा कि अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ फरमा ए अल्लाह, उन सब की खबरों की तंगी और तारीकी को दूर फरमा। उन सब की दुआओं को अपने फजल खास से तमाम मरहूमीन के हक़ में और इन 2 शोहराए कराम इनके हक़ में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असम्बली की जानिब से इनका इंतखाब होना तय था, उसमें एक माइनॉरिटी को भी एक पोस्ट दी गई और वो शुमाली कर्नाटक के जो हमारे अंजुमन इस्लाम धारवाड़ के जो सदर हैं नौजवान इस्माइल तामड़गर साहब की के लिए ये मुख्तस की गई थी। आखिरी लम्हात में इसको तब्दील किया गया। उस वक्त एक वाहिद शख्स था कर्नाटक में मुसलमानों की जानिब से, वो उबैदुल्लाह शरीफ साहब थे कि उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस करके इस्माइल तामड़गर साहब का नाम लेकर जो उनका टिकट दिया गया था और वो उनसे छीन लिया गया, उसकी जो है उन्होंने वजाहत की थी और अपने ही कमेटी, कांग्रेस कमेटी के इस इक़दाम को उन्होंने गैर ज़रूरी और गैर अखलाक़ी करार दिया था। इसलिए हम धारवाड़ के तमाम लोग उससे बहुत मुतासिर हुए, सिर्फ धारवाड़ ही के नहीं बल्कि जहाँ जहाँ ये न्यूज़ पहुँची है वहाँ के लोगों ने जो है उबैदुल्लाह शरीफ की इस आवाज़ को पसंद किया, इसलिए कि आवाज़ उठाना ये बहुत ज़रूरी था। और मैंने हमेशा इनको देखा है कि उर्दू के हवाले से हो या माइनॉरिटी के हवाले से जब भी कोई गलत काम होता है, अगर वो कांग्रेस कमेटी भी करते हैं उसका वो निशाना बनाते हैं। मकसद ये होता है कि हम पॉलिटिकल हैसियत से, सियासी एतबार से भी हमको मजबूत होना है और जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे आपकी कोई हुकूमत हमारा साथ नहीं देगी। इसकी बेहतरीन मिसाल उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने हमारे ताल्लुक से कही है। इसका हम जी तो यहाँ आज जो है 3 बजे हमारी जो स्टडी टीम में जो है ये साथी शख्स की
उर्दू के ऊपर जो रिपोर्ट तैयार हो रही है वो आज 3 बजे बैठ रहे हैं। मैं और तनवीर शेख वहाँ जाने वाले थे आज। तनवीर शेख साहब का फोन आया कि वो मैसूर गए हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर वहाँ आ रहे हैं, तो वो मीटिंग है। लेकिन हमारे जो स्टडी टीम है वो आज बैठे हुए हैं। ये रिपोर्ट तैयार होने के बाद उस रिपोर्ट के ऊपर एक ये जो है एक सेमिनार जो है मैं मैसूर में कर रहा था। असम्बली की जानिब से इंतखाब होना था, उसमें एक माइनॉरिटी को भी एक पोस्ट दी गई और वो शिमाली कर्नाटक के हिंदुस्तान धारवाड़ के जो सदर हैं नौजवान इस्माइल तावड़कर साहब के लिए ये मुख्तस की गई थी। आखिरी लम्हात में इसको तब्दील किया गया। इस वक्त एक वाहिद शख्स था कर्नाटक में मुसलमानों की जानिब से, वो उबैदुल्लाह शरीफ साहब थे कि उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस करके इस्माइल साहब को नाम लेकर उनका पीरियड दिया गया था और उनसे छीन दिया गया, उसकी जो है उन्होंने वजाहत की थी और अपनी ही कमेटी कांग्रेस कमेटी के इस इक़दाम को उन्होंने गैर ज़रूरी और गैर अखलाक़ी करार दिया था। इसलिए हम धारवाड़ के तमाम लोग इससे बहुत मुतासिर हुए थे। धारवाड़ के नहीं बल्कि जहाँ जहाँ ये न्यूज़ पहुँची है वहाँ के लोगों ने जो है उबैदुल्लाह शरीफ की इस आवाज़ को पसंद किया, इसलिए कि आवाज़ उठाना ये बहुत ज़रूरी था। और मैंने हमेशा इनको देखा है कि उर्दू के हवाले से हो या माइनॉरिटी के हवाले से जब भी कोई गलत काम होता है, अगर वो कांग्रेस कमेटी भी करते हैं उसका वो निशाना बनाते हैं। मकसद ये होता है कि हम पॉलिटिकल हैसियत से, सियासी एतबार से भी हमको मजबूत होना है और जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे आपकी कोई हुकूमत हमारा साथ नहीं देगी। इसकी बेहतरीन मिसाल उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने हमारे ताल्लुक से कही है, इसका हम तमाम शुक्रिया अदा करते हैं और अंजुमन की जानिब से। आपने कहा कि 5000 स्कूल्स थे, अब जो है शफी साहब ने कहा कि अब 4000 हो गए हैं। 4000 हो गए हैं, बच्चे कितने जा रहे हैं आपको? बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। इसके लिए जो है ये जो हमारी रिपोर्ट बन रही है, ये रिपोर्ट में जो है किस वजह से ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं और इन ड्रॉप आउट्स को कम करके जो है दाखिले ज्यादा कैसे हों, कैसे एडमिशन ज्यादा हो उर्दू मीडियम स्कूल में, उसके ऊपर भी जो ख्याल किया जाए। एक रिकमेंडेशंस वो दे रहे हैं, उसके ऊपर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। एक बात यह है कि उमूमन हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में यह है कि उर्दू पढ़ने से इनका हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है। तो आप हमारे जो उर्दू के टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ाए, ये नामुमकिन है। तो इसलिए जो है एक सब्जेक्ट कम से कम उर्दू। अब जो मौलाना आजाद स्कूल जो शुरू किए गए थे तनवीर शेख साहब के जमाने में, बहुत अच्छा इकदाम। 400 में जो है आपने कहा कि 3 जो है वहाँ मैसूर में ही जो हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है मौलाना आजाद स्कूल एक कामयाब स्कीम है, कामयाब ये है। अब नई एक ये आई है बाइलैंग्वेज, इसका 1500 स्कूलों को जो है कन्नड़ा मीडियम स्कूलों को यानी कुल कर्नाटक में जो है बाइलैंग्वेज किया गया है। बेटा उसमें सिर्फ 3 उर्दू स्कूल थे। अब बाइलैंग्वेज में होता क्या है, अगर किताब उर्दू और अंग्रेजी में दो में हो तो बच्चे जो है अंग्रेजी में जैसे पढ़ाएंगे लोगों को जैसा मालूम होगा, पेरेंट जो है दाखिले ज्यादा करेंगे, उर्दू भी रह जाएगी, कन्नड़ भी पढ़ लेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ लेंगे। हम जो है ये नहीं कि जो बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, ये भी गलत बात है। अब हम जो है यहाँ पे ये जो जहाँ में आप बैठे हैं ये और डीजेएलडी स्कूल जो है, डीजेएलडी स्कूल जो है वो उर्दू मीडियम एडेड है, 1 साल भी एडेड होता है उर्दू मीडियम प्राइमरी, हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम। लेकिन बच्चे 7वीं जमात से हाई स्कूल जब 8th स्टैंडर्ड को आ रहे हैं तो वो जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने होने दिक्कत हो रही है। तो हमने इस साल से क्या शुरू किया है, एलकेजी यूकेजी में ही बच्चों को सिर्फ इंग्लिश किताबें, ये जो फाल्कन चल रहा है उनके सिलेबस लेके वो किताबें हमारे बच्चों को यहाँ भी वहाँ दे रहे हैं, साथ में जो है उनको उर्दू और कन्नड़ पढ़ा।
उसका असर पीयूसी को हुआ सर। पीयूसी में सिर्फ 12 स्टूडेंट। ठीक है।